Namaste ji, namaste. So welcome to yet another chapter or rather lecture in the Polity Station series. This is based on Lakshmikant's ever famous polity book. So now we finally enter into the main domain of the constitution. We are going to start with the preamble, and this is I think going to be a 2 or 3 part video, else it will get too boring. And this is ये गौमुख है जहाँ से सारी गंगा बहती है कॉन्स्टिट्यूशन की. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो टिकी हुई है प्रियम्बल पे टिकी है, और प्रियम्बल पे टिकी है तो और कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में सारे लॉज आए हैं. सो everything can be traced back to words herein, and then these words are extremely important for your exam. But first and foremost, what does preamble mean? I mean preamble तो लगा रखी है, इधर सड़क पे भी लोग उतरे हुए हैं, वी द पीपल जीतते हुए. But what does this mean? It's coming from the word preambulus. That's old Latin, and that means going before. तभी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इसको रखा गया. That's what the name means. Always remember, चाहे आप हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, शब्द का मतलब समझ लेंगे, काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी. Okay. First point that you want to note is who started this USA. So we obviously took inspiration from them. Okay. Now USA started this, then ID card of the Constitution. Preamble is an ID card of the Constitution. Who said this? Dr. B.R. Ambedkar or N.A. Palkhiwala. For any competitive examinations, just have a look at the books that this man authored. Very common static GK sort of a question comes. Okay. ID card of the Constitution hai. It is going before. So technically speaking, and where did we copy it from, where did we borrow it from, where did we take it from, different ways of crafting out MCQ, that's basically USA. अब preamble है क्या? We the people, right? We the people. Who is we? Who is this we? Well, citizens of India. Citizenship कहाँ दे रखी है? Part 2, Article 5 to 11. See? वी के चक्कर में अब डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना. वी द पीपल तो कर दिया, बट वी हैं कौन? दैट्स वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन द CAA NRC केस. एनीवे, पॉलिटिक्स aside, let's not go there. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India, कि जी हम ये बनाने जा रहे हैं, हम आपस में हमने जी अग्रीमेंट कर लिया है जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, that we are going to abide by this constitution, and therefore when we send our lawmakers, they are going to make laws on our behalf for us to comply with, but according only to what we have agreed to in the constitution. That is the core meaning of, well, why does the constitution exist? That is the main purpose. All right. Okay, now I think I'll just get slightly out of focus so that I can use the board better. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, क्लैट वाली जनता, लॉ एंट्रेंस वाली जनता, इसकी स्पेलिंग, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डज द ई कम हियर फर्स्ट और डज द आई कम हियर फर्स्ट? गूगल इट, कलयुग के देवता से पूछे. सॉवरेन, ओके, व्हाट इज, अच्छा सॉवरेन अभी वर्ड्स में आते हैं. सॉवरेन, सोशलिस्ट, अरे वाह, अब हम सोशलिस्ट भी हैं. कौन से सोशलिस्ट हैं हम? आर वी द ट्रेडिशनल हाईली सोशलिस्ट economy such as China? Are we that? No? Be something else. Anyway, look at that. Secular. So we have having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Order याद रखना है. That's a very very frequent MCQ. Order याद रखना है इसका. ठीक है? ये ऑर्डर है कि नहीं, आई लीव इट अप टू यू कि ये इसी ऑर्डर में चलते हैं या नहीं. राइट. अब ये शब्द रट तो हमने लिए, रट तो लिए, लेकिन उसके बाद क्या है? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा एक और हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रियम्बल का. एंड टू गिव टू आवर पीपल, एंड दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्डिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी.
इसका भी ऑर्डर याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में कभी यार पूछ लेता विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रियम्बल, दैट्स अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व. अच्छा, जस्टिस ऑफ व्हाट काइंड? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी लगाते थे, यहाँ आईसीपी लगा दीजिए, यही है ना. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, देयर इज नो रिलीजियस जस्टिस. एमएचसीटी 2019 का क्वेश्चन आई थिंक. ओके, लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ व्हाट काइंड? ऑफ व्हाट? लिबर्टी टू डू व्हाट? जस्टिस तो मैंने आपको बता दी. ऑफ liberty to do what? Liberty to do whatever the hell that you want to do, as long as it doesn't harm anybody else, that is your fellow human being, in most cases Indian, in some cases even a foreigner, and it doesn't say anything or doesn't harm us, the unity of the nation, the integrity of the nation. वो सब नहीं बोलना है उल्टी सीधी चीज़, सेडिशन का केस लग जाएगा. और सेडिशन का केस लगे, वो सेडिशन आईपीसी में दे के रखिए. अच्छा जी, लिबर्टी, थॉट, और क्या आगे? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यही है ना. साउंड्स लाइक अ TGIF काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट, TBFW. इक्वालिटी किस किस चीज़ के देंगे हम आपको? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, SNO. ओके. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स व्हाट? ब्रदरहुड, कि वी विल लिव टुगेदर एज वन पीपल, एज वन unit. And fraternity के वैसे मतलब क्या होता है? Like for example, let's say that you belong to the legal fraternity. That means you are a lawyer. You'll behave well with lawyers, and you work as like one brotherhood, right? अच्छा. And to ensure unity. अच्छा, dignity of the individual. आपकी dignity के चक्कर में ही तो आपके सारे individual आपके right and rem, right and personam आ जाएंगे. Right and rem आएंगे ज़्यादा. Dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Okay. Now, originally, then we are going to go into the objective resolution, which we have already discussed in a previous lecture, by the way, right? Objective resolution, who got it passed? JLN. I'll just move on this side. Objective resolution passed by JLN in the Constituent Assembly. अब objective resolution थे क्या? प्रीवियस लेक्चर में से देख लेंगे. और उसके अंदर भी एक प्रियम्बल भैया का एक ओरिजिनल फॉर्म था. इट साउंड्स लाइक फ्रीजा फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी. इफ यू डोंट गेट द जोक, डोंट वरी, इनके फॉर्म बदलते रहते. Oh, this is not even my final form. That's like a meme online. Okay, so preamble. अब preamble उस टाइम पे कैसा था मैंने बताया हुआ, पिछला लेक्चर रिव्यू कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि जी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठने जा रही है वो क्यों बैठ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, और हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं. दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज, राइट. सो एवरी टाइम दैट यू ट्राई टू रोट लर्न, जस्ट ट्राई टू थिंक एग्जैक्टली व्हाट एम आई स्टडिंग. यू विल मेक a much better student. You will basically hop on over competition to your goal. Okay, objective resolution हो गया, JLN हो गया. These are crucial details. All of these are MCQs, by the way. Now we come to the meanings of the words. So we're going to start in this video and then continue over, क्योंकि हर chapter में almost 2 से 3 वीडियो लग जाते हैं, because I don't like to bore people to death by making 45-minute videos, 1 hour, 1.5 hours. 10 to 15 minutes is like the average income. What does sovereign mean? Let's try the short word. Sovereign. Sounds very much like the USSR of previous days. What does sovereign mean? Sovereign means जी हम आज़ाद हैं पूरी तरह से. There is हमारे कोई पिताजी नहीं है. As in a foreign nation, we don't answer to anyone. We are completely independent. So despite that, we continued our Commonwealth ki membership in 1949, and despite that, we were a member. We joined as a member in the United Nations organized in starting GE Convention 1945. We're still not answerable to anyone. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, right? From border. अच्छा, socialist. अब just 1 second before we enter into the socialist sort of terminology. एक amendment आई थी, 42nd amendment, इंदिरा गांधी जी की कृपा से, right? Which was like a fantastic thing. Not a fantastic thing, right? This changed the entire constitution. That's what like true fascism looked like back in the day. 42nd amendment basically changed almost everything of the constitution, and it was like a very, very oppressive
amendment. The chain started off with 39th amendment and then the chain started from the 24th amendment, 24th, 25th, 26th, then 39th, 42nd, right? अब 42nd amendment ने change किया preamble को. It brought in what all words? Preamble change हुआ है. Socialist, secular and integrity. These words did not exist prior to the 42nd Amendment, which came in the year 1976. Common misconception that Keshavanand Bharati judgment dealt with the 42nd Amendment. No, that judgment came in 1973. हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं. So it is very important to know the time structure that we are dealing with. अच्छा, second thing regarding the time structure, I already have a separate playlist for Indian legal history where we're discussing the cases and the timeline. There is only one lecture there as of right now, but I have plans to expand that series to clear out common misconception. Now, अच्छा जी, 42nd Amendment ने ये 3 शब्द चेंज कर दिया, फिर साथ में 2 जजमेंट थी. बेरूबारी यूनियन रेफरेंस में, सो इट वॉज, आप पढ़ते हैं ना, इन री आरी, ये री का मतलब क्या है? Reference. Start questioning your teachers wherever you're starting from. Start asking them कि भाई क्या लिखा हुआ है इन रे, ऐसा थोड़ा ना इन रे, ऐसा थोड़ा ना कर देना. Right? So start asking. रे बेरूबारी यूनियन. It was held that preamble is not a part of the constitution. Keshavanand Bharati. It was, चलिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है. It was held that preamble is a part of the constitution and you can amend it as long as you don't violate the our ever popular basic structure. The doctrine of basic structure, यही है ना? Okay. Then we come to the word, अच्छा, socialist पे आते हैं. Socialist अब वर्ड पहले नहीं था, मतलब शुरुआत से तो नहीं था क्योंकि हम इसको अमेंडमेंट से लेकर आए, तो क्या मतलब हम सोशलिस्ट नहीं थे? Again referring to that Indian legal history वाला वीडियो, just do watch it. 39, अब सिंस 39 है तो ये क्या है जी? ये DPSP के अंदर आ गया ना, which is part 4 of the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही टिप्स पे चाहिए तभी काम बनेगा, राइट? अच्छा जी, 39 क्लॉज बी क्लॉज सी में तो हम हमेशा से सोशलिस्ट है और यही वो आर्टिकल नंबर है और इसके जो 2 क्लॉजेज हैं जिसने ये सारी हमारी अमेंडमेंट केस लॉ की गंदा बहानी शुरू करी थी. ओके, 39 क्लॉज बी हो गया, 39 क्लॉज सी हो गया जी, डीपीएसपी आ गए, मतलब सॉरी डीपीएसपी था, लेकिन अब हमने एक्सप्रेसिवली कह दिया भैया हम तो सोशलिस्ट हैं, वी आर गोइंग टू स्ट्राइव टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग ऑल, ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सबके पास इक्वल हो. तो हमने ये शब्द प्रियम्बल में ही डाल दिया यहाँ पर लाकर, ठीक है? अच्छा, 2-3 चीज़ें अभी और हैं, वो अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे. लेट्स जस्ट कवर आउट द बेसिक मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सपैंड अ बिट मोर फर्दर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वन. व्हाट इज सेक्युलर मीन? सेक्युलर इज अ फेवरेट वर्ड ऑफ आवर लेफ्ट लिब एंड राइट विंग. यही लड़ाई चलती है ना, सम पीपल ये सेक्युलर है, ये तो सेक्युलर है, ऐसा सी के ऐसे बोलता है, और फिर दूसरे कहते हैं नहीं हम तो सेक्युलर हैं और ये हैं और वो हैं. वो कहते हैं अगर सेक्युलर हो तो हिंदू मंदिरों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है. वो सामने वाले कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमारे को कैसे, आप क्या बोलते हैं, वो भी एक छोटा सा हक जो तुमने दे रखा है हमसे वो भी छीन लोगे. तो ये एंडलेस डिबेट नॉनसेंस चलती रहती है. 25 से 28 जरा देखेंगे आर्टिकल्स, एक बार खुद रिव्यू करेंगे. सेक्युलर शब्द 25 से 28, अब 25 से 28 तो ऑब्वियसली पहले ही आ रखे हैं ना आर्टिकल हमारे, लेकिन अब उन्होंने स्पेशली कहते हैं भैया हम सेक्युलर हैं. आपके रिलीजन की जितनी भी स्टेटस, मतलब कोई भी स्टेटस हो, कितनी भी स्ट्रेंथ का हो, किसी का कुछ हो, आप किसी भी धर्म से हैं, सरकार आपकी तरफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. सरकार को कोई लेना देना नहीं है आपके किस धर्म से. ऑन पेपर कहते हैं यही होता है. तो लेकिन हम ऑन पेपर ही करें, हम तो पेपर क्लियर करना है, हमने कोई पॉलिटिशियन तो बनना नहीं ना, हमारा कोई एजेंडा तो है नहीं यहाँ पे आपको बेचने का. तो सेक्युलर, that's what secular basically means. Secular means that you can be from any religion and I'll treat you the same. I don't favor any particular religion. So the right wing keeps on crying that Hindus are being discriminated against, the left wing keeps on crying that Muslims are being discriminated against, and बाकी minorities को तो शायद कोई पूछता ही नहीं. That's the truth of the situation. अच्छा, तो अब having said that, this is a very very dicey debate which I try to stay as far away as I can. तो अब बाकी माइनॉरिटी वाले भी आजकल जब मैं देखता हूँ ऑनलाइन कि मतलब जैनीज भी हैं, वो सब भी कहते हैं कि भैया हम भी तो माइनॉरिटी हैं, फिर हमारी भी उतनी बात करो.
तो ये सब इनके झगड़े, पॉलिटिशियंस, नेता आग लगवाता है, दंगा करवाता है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। खैर हमें उस चीज़ में नहीं पढ़ना। अब सेकुलर हो गए, डेमोक्रेटिक, लेट्स रिमूव, ये नोट डाउन कर लिया, लेट्स रिमूव दिस। एक्चुअली ये सब डिस्कशंस बिना करंट सिनारियो के डिस्कस करे हुए हो ही नहीं सकती, तो चलिए थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं डिस्कशन कभी कभार। डिस्कशन करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट से क्या है, क्या हो रहा है? अब मेरे को 2 गाली बक जाएंगे, वो तो होता ही रहता है कर लो, हु केयर्स। डेमोक्रेटिक, जब अच्छा, और गाली भी बिना जाने, बिना पूरे पॉइंट को समझे, कह रहे नहीं, दैट्स सेपरेट स्टोरी। नाउ व्हाट डेमोक्रेटिक, अच्छा, डेमोस एंड क्राटिया, if I'm not mistaken, root words coming from Latin, right? Rule of the people, or to be specific, people and rule, people rule, okay, कि जी हम ही राज करेंगे ना इस पे। अच्छा, two kinds, direct, indirect। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या फर्क है? डायरेक्ट सच एज स्विट्जरलैंड, इसके भी 4 रूप। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमने कोई, क्या बोलते हैं, हम खुद ही लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि होगा क्या। इनडायरेक्ट के अंदर जी आप क्या ला रहे हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूएस में प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं, हम यहाँ पे अपना पार्लियामेंट चुनते हैं। रिमेंबर, इट्स एन इलेक्शन ऑफ एमपीज आउट ऑफ विच अ पीएम इज चोजन, विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस स्ट्रक्चर इज। ओके, नाउ वी कम टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या है जी, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेब्सिसाइट। Let's not get into these details. We'll get into these details when we get into the discussion for Article 370. Okay, so I have to edit it out because we lost the electricity here. So we are indirect representation, parliament, we the people, again, Ganga, हमारे agronom and jurisprudence, Kelson, we the people, हमने जी चुन लिए जी अपने आप, अपने बीच में से एक आदमी कि तुम जाके हमारा नेता बनो, हम अपनी ज़िंदगी चलाएंगे, ज़िंदगी हम चलाएंगे तो इकॉनमी चलेगी तो पैसे हम आपको पैसे देंगे, पैसों से आप फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कीजिएगा, लेकिन जो कानून आप बनाएंगे वो हम आपसे कंप्लाई करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और वो कानून आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके तहत बनाएंगे। दैट्स व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटी इज। Sorry, lost the electricity again, so I have to reshoot what I've written. So then we get to the word republic. Democratic polity is of 2 kinds. One is monarchy, then one is a republic. That means there is head of state. In a monarchy, well, just by the basis of your bloodline, just by the basis of your DNA, well, that's it. आप head of state बन गए क्योंकि आप पैदा हो गए, आप एक रॉयल फैमिली में पैदा हो गए, यूके, आप ऑटोमेटिक हेड ऑफ स्टेट बन गए। रिपब्लिक में हम चुनेंगे आपको कि अगर आप हमारे हेड ऑफ स्टेट, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, पीएम या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, राइट। अब जब प्रेसिडेंट है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को क्या हम लोग डायरेक्टली चुन लेते हैं? तो डू वी गो टू द voting booth and the ECI conducts the election and asks us to press a button? I doubt. No. Then homework for you. इनका electoral college कहाँ से जी? Which members basically comprise elected and nominated? Go review Article 52 to 62. And then, अच्छा, रिपब्लिक तक हमने बात कर ली. Now we're going to the next one. We're going to go into justice, liberty, equality, fraternity, and then we can, I think, in the next one, be able to conclude the preamble. तो hopefully समझ में आया, hopefully ठीक भी लगा होगा. Oh, before I end, thank you so much to our subscribers. You truly make us who we are. If you haven't subscribed already, what are you waiting for? The amendment of the preamble? That certainly isn't happening, no? Okay. तो एटलीस्ट फंडा समझ में आ गया होगा कि ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, क्यों हैं. रटना तो बड़ा आसान है, लेकिन हमने तो पढ़ाई करनी है, और अगर हमने पढ़ाई कर ली तो कोई भी हमें क्रॉस क्वेश्चन करेगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी पेपर निकलेगा, और कोई आगे प्रैक्टिस में हो, चाहे आप लॉ की प्रैक्टिस में जाएँ, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, यू विल बी अ बेटर वन देन योर पीयर. एंड रिमेंबर, आफ्टर ऑल थोड़ा बहुत तो कॉम्पिटिशन है ही ना एंट्री के लिए, to become better in the competition. Alright, thank you so much. Take care, and now see you in part 2 of Preamble in the Polity Station series. Bye bye.